Hello student, welcome to the Aao Padhe. Today I am going to teach you class 10 chapter number 15 our environment. So student, let's come with me. Chapter 15 our environment. What is environment? Okay, so everything in our surrounding is known as the environment. Okay, to human or animals, living things, non-living things means biotic and abiotic component. सब कुछ मिलाकर जो हमारी सराउंडिंग बनाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट. ऑलराइट, तो इसी एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही रहते हैं. सो द डेफिनेशन इज ऑफ एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग विच सराउंड्स अस इज एनवायरनमेंट. It may include living things means biotic components and non-living things means abiotic components. Alright. Now, in this chapter, we discuss about two types of waste. Biodegradable waste and non-biodegradable waste. So, first is biodegradable waste means ऐसे waste जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं और जो इजीली एनवायरनमेंट में डीकम्पोज हो सकते हैं. कौन करते हैं उन्हें? डीकम्पोजर्स उन्हें डीकम्पोज कर सकते हैं और वो हमारे नेचर में पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते. सो दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज द सब्सटेंसेस दैट कैन बी स्लोली destroyed and broken down into very small parts by natural process with the help of bacteria and fungi. Bacteria and fungi are decomposer, you know that. For example, organic waste like vegetable peels, fruit peels, dead plants, twigs, leaves, dry leaves और rotten fruits एंड एनिमल पार्ट्स, यानी सड़ी गली जितनी भी चीजें होती है जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलकर बनी होती है वो सब किस कैटेगरी में आएंगी? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नाउ सेकेंड वन इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी ऐसे वेस्ट लाइक अ प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग जो कि कई सालों तक एनवायरनमेंट में रहने के बाद में भी वो डिग्रेड नहीं होती या डिकम्पोज नहीं होती. So these type of waste is non-biodegradable waste. और non-biodegradable waste environment में क्या create करेंगे? Yes, pollution. So the substances which cannot be broken down or decomposed into the soil by the natural agent means decomposers are called non-biodegradable waste. Example: plastic, polythenes, metal cans, aluminium cans, toxic chemicals and different type of paints. Alright. Now ecosystem. तो जैसे हमने कहा कि हमारा एनवायरनमेंट लिविंग और नॉन लिविंग से मिलकर बना है, तो जब लिविंग और नॉन लिविंग में आपस में इंटरेक्शन होता है या आपस में जो कनेक्शन होता है उसी से हमारा क्या बनता है? इकोसिस्टम. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द पिक्चर. इस पिक्चर में हमने कहा कि दिस इज द इकोसिस्टम. देखो, सन की लाइट आ रही है, प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं, एनिमल्स हैं और वाटर है, तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक इकोसिस्टम. बिकॉज इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन. कि विदाउट वाटर और सनलाइट प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते एंड विदाउट प्लांट्स एनिमल्स अपना फूड ऑब्टेन नहीं कर सकते. So, ecosystem क्या है? Interaction between living or non-living things. Alright? So, the definition of ecosystem is the interaction between abiotic and biotic components is defined as ecosystem. It is a self-sustained and functional unit of biosphere. Okay, biosphere means the earth surface. The term ecosystem was first coined by the Sir Tinsley. Okay. तो सबसे पहले सर टेंसले ने ही इकोसिस्टम वर्ड को यूज किया था. नाउ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. ओके, सो देयर आर द टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. द इकोसिस्टम प्रेजेंट इन नेचर इज नोन एज नेचुरल इकोसिस्टम, यानी ऐसा एनवायरनमेंट जो कि हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट,
grassland, deserts, ponds, lakes, rivers, etc. are the natural ecosystem. Okay, for example is a grassland. Okay, तो grassland में क्या होगी, grasses भी होंगी, different type के animals भी होंगे, sunlight भी होती है, air भी होती है. So these type of ecosystem is known as natural ecosystem. Okay, so second one is the artificial ecosystem. For example, garden, aquarium, agro ecosystem. Okay, which is made up of the man. Okay, तो artificial ecosystem क्या हुआ? The ecosystem which is man-made is known as artificial ecosystem. For example, garden, aquarium. Okay, हमने aquarium में देखा है कि different type की small, big fishes, छोटे छोटे animals होते हैं, वहाँ पर water भी होता है, oxygen level भी होते हैं, and some plants. तो इस तरह के ecosystem को हम क्या कहेंगे? Artificial ecosystem. Now this is the layout of the ecosystem and components of the ecosystem. So आप इसे अपनी रफ नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं जिससे आपका एक पूरा चैप्टर समराइज हो सकता है. Okay, so ecosystem 2 से बना है abiotic and biotic components. और abiotic components subdivide into climatic factor and adiabatic factor. Climatic factors such as rain, temperature, light, wind. And adiabatic factor is soil, pH value, mineral and topography. Biotic factor include producers, consumers and decomposers. Okay, producers generally green plants. Consumers means primary, secondary यानी वो animals जो कि producers पे depend रहते हैं और consumers जो अपने food को consume करते हैं plant से या other animals से. और जो dead और decaying matter पर depend रहते हैं they are decomposer. Example bacteria, fungus. Alright, so आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इस लेआउट को आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी रफ नोटबुक में. Alright, now food chain. Okay, food chain is a very simple topic और ये हमने I think क्लास 3rd से रीड किया है. But now we discuss food chain in a different manner और थोड़ा हायर लेवल से हम पढ़ेंगे और हमारी डेफिनेशन भी हम थोड़ी अपग्रेड फॉर्म में लिखेंगे. Alright, so food chain is defined as the series of organism in order in which organism feed on other organism. Okay, simply हम क्या कहते हैं कि फूड चेन एक सीरीज होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहकर क्या करते हैं, फीड करते हैं. ओके, सो फूड चेन में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ही उसमें क्या होते हैं, ट्रॉपिक लेवल होते हैं. और फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद द स्ट्रेट लाइन. फूड चेन कैसे चलेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी. ऑलराइट, तो फूड चेन क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम एक लेवल से दूसरे लेवल में और फूड चेन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में चलेगी. यानी एक एनिमल से दूसरे एनिमल को खाने का एक सीक्वेंसली प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फूड चेन. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन इज देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. यूनिडायरेक्शन यानी फूड चेन ऑलवेज कैसे चलेगी, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी. ओके, और कहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. कहाँ से ऑलवेज स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर से यानी ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगी और नेक्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर पे चलेगी. इट हैव जनरली 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल बिकॉज 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल के बाद में एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है. एंड व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल वो हम नेक्स्ट स्लाइड में रीड करेंगे. सो जनरली 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल ही होते हैं. एंड फूड चेन इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन. फूड चेन कैसे चलेगी, ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट होगी. ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन डिफरेंट फूड चेन. और हर एक डिफरेंट फूड चेन के अंदर ट्रॉपिक लेवल भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. यानी किसी फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल 3 ही होंगे, किसी में 4 या किसी में 5 भी हो सकते हैं. ओके, वो फूड चेन की कैटेगरी पर डिपेंडेंट होगा. नाउ व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल means it refer to the various level of food web as per the flow of energy. यानी फूड वेब के डिफरेंट डिफरेंट लेवल को या फूड चेन के डिफरेंट लेवल को ही हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल. ओके, सो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट जिसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स हुए. प्राइमरी जो कि हर्बीवोरस जो कि प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं वो ट्रॉपिक लेवल सेकेंड हुआ. फिर जो हर्बीवोर्स को खाएंगे वो ट्रॉपिक लेवल 2 हुआ और जो उन्हें खाएंगे वो ट्रॉपिक लेवल 3 और 4 हो सकता है. ओके, सो
एक फूड चेन में मैक्सिमम 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। नाउ एनर्जी ट्रांसफर, तो हम क्या कहते हैं कि जब एक एनिमल को दूसरा एनिमल एज अ फूड ईट करता है तो हर एक बार में क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो 10% लॉ को फॉलो करती है। 10% लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि हर बार, लुक एट द पिक्चर, हर बार जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है। 90% उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के खुद के लिए यूज अप हो जाती है। तो एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है नेक्स्ट लेवल में, 10%। ओके, लुक एट द पिक्चर कि यहाँ पर सन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसमें से 10,000 जूल किसने लिए थे, प्रोड्यूसर्स ने यानी प्लांट्स ने, और प्लांट्स में से 10% एनर्जी आगे पास हुई यानी 1000 जूल। और जब इसे ग्रास ऊपर को रेट ने ईट किया तो उसमें 100 जूल ट्रांसफर हुई यानी 10% एनर्जी। और इस 100 जूल में से भी जो टर्शरी कंज्यूमर था उसे भी 10 जूल एनर्जी मिली। तो टर्शरी लेवल तक आते आते एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है, इसलिए हमारा ट्रॉपिक लेवल 3 to 4 लेवल तक ही अपग्रेड होता है। So, a 10% law is followed in energy transfer, which was given by the Raymond Landman. This law states that only 10% of energy is transferred from one tropic level to another tropic level. The remaining 90% will used by the present tropic level, और 90% उस particular organism के लिए used हो जाती है। Therefore, they usually 3 to 4 tropic level is present in the food chain. इसलिए 3 से 4 ही tropic level होते हैं। Now food web क्या होती है कि जब बहुत सारी food chain आपस में interconnected होती है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, food web. It show how food chain is interdependent. Okay, so food web is interconnection of food chain is known as food web. और फूड वेब ऐसा होता है कि अगर किसी एक सीरीज में, यानी प्लांट को ग्रास ऊपर ने ईट किया, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को पाइथन ने, ऑलराइट, तो ग्रास ऊपर को ईट करने के बाद में फ्रॉग था। ओके, तो फ्रॉग अगर डेड हो गया तो उसका इफेक्ट दूसरे एनिमल्स पर नहीं पड़ रहा है, या रेट को ईट कर लिया, या रेट है तो उसको डायरेक्टली ईगल भी यूज कर सकता है, वुल्फ भी खा सकता है, पाइथन भी खा सकता है। ओके, सो इस तरीके से जो इंटरकनेक्शन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फूड वेब। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड वेब इज, फूड वेब आर नेवर स्ट्रेट एज दे फॉर्म इन इंटरलिंक्ड ऑफ फूड चेन। ओके, जैसे कि फूड चेन एक स्ट्रेट लाइन में होती है वैसे फूड वेब एक सिंगल लाइन में नहीं होते हैं। द फूड वेब प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। डिफरेंट पाथवे, यानी कि एक एनिमल प्रेजेंट नहीं है तो उस एनिमल को खाने के लिए दूसरा एनिमल मिल सकता है। इफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इज डिस्ट्रॉय, अगर कोई एक एनिमल डिस्ट्रॉयड होता है तो दूसरा एनिमल भूखा नहीं रहेगा, उसे उसका अल्टरनेट सोर्स भी अवेलेबल होगा। फूड वेब इंक्रीज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, जिससे हमारा इकोसिस्टम कैसा रहता है, स्टेबल, यानी किसी एक एनिमल के डेड होने से दूसरे एनिमल पर इफेक्ट नहीं होगा। नाउ पिरामिड्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल, अगर हम उसे ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पिरामिड्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल। Is a graphical representation, can be pyramid of numbers, pyramids of biomass and pyramids of energy. Okay, तो अगर हम ट्रॉपिक लेवल के पिरामिड्स बनेंगे तो 3 टाइप्स के हमें पिरामिड्स मिलते हैं, एंड ऑलवेज द 3 पिरामिड्स हमें किस कंडीशन में मिल रहे हैं, अपराइट कंडीशन में, बट नंबर्स एंड बायोमास के पिरामिड्स हमें अपराइट पोजीशन की बजाय इनवर्ट पोजीशन में भी अवेलेबल हो सकते हैं। बट एनर्जी ऑलवेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ऑलवेज एनर्जी लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो रिमेंबर दैट कि नंबर और बायोमास का पिरामिड इन्वर्ट हो सकता है, उल्टा हो सकता है, लेकिन एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट ही बनेगा। क्लियर? सो number of pyramids, or given the number of organism present at each tropic level, it can be upright or invert. Pyramid of biomass give the biomass of each tropic level could be upright and invert. Now energy is always upright and its flow energy from one tropic level to next tropic level. और ओके, तो इसे हमें याद रखना है कि नंबर और बायोमास जो है वो इन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी ऑलवेज कैसी रहेगी, सीधी। ओके,
So the number of pyramids of biomass can be invert also in aquatic system. Okay, यानी large fishes के नंबर ज्यादा है, small fishes के नंबर कम, zoo plankton उनसे भी कम है, और phytoplankton यानी producers और भी कम है. तो वाटर के अंदर यानी एक्वेटिक पिरामिड हमारा कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है. तो नंबर्स और बायोमास का वाटर लेवल में या एक्वेटिक इकोसिस्टम का पिरामिड ऑलवेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड. ऑलराइट, नाउ सम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. ओके, हमारा सराउंडिंग को हमने एनवायरमेंट कहा, बट द ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारा सराउंडिंग कंटिन्यूअस पॉल्यूटेड होता जा रहा है. सो चेंज इन एनवायरमेंट अफेक्ट अस and our activities change the environment around us and create environmental problem. Okay, तो इस चैप्टर में हम 2 environmental problem डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल. सेकेंड वन इज पॉल्यूशन ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. ओके, यानी ओजोन लेयर की वजह से जो वेस्ट डिस्पोजल पर इफेक्ट आ रहा है और पॉल्यूशन की वजह से जो वेस्ट डिस्पोजल पर इफेक्ट हो रहा है. सो ओजोन लेयर O3 जिसे हम कहते हैं बनी होती है, और हमारे कंटिन्यूअस CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है उसकी वजह से वो गैस बहुत ही लाइट होती है, वो ओजोन लेयर के साथ में रिएक्शन करती है और ओजोन को O3 और O में डिप्लीट कर देती है. ओके, लुक एट द पिक्चर, O2 और O3 में डिप्लीट. ये O3 था और CFC गैस जो है उसे O2 और O में डिप्लीट कर रही है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, होल होता जा रहा है. और ओजोन लेयर से सन की यूवी रेज, ओजोन लेयर क्या करती है, सन की हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है. बस उसकी इस यूवी रेज की वजह से, ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से यूवी रेज अर्थ की सरफेस पर इंक्रीज होती जा रही है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, और हार्मफुल डिजीजेस लाइक कैंसर एंड स्किन डिजीजेस इंक्रीज होती जा रही है. ऑलराइट, सो द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द सन्स यूवी रेज and CFC release into the atmosphere react chemical with the ozone molecule and deplete the ozone layer. Now garbage disposal. इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी बहुत ज्यादा मशीनी वर्क और औद्योगिकरण की वजह से राइजिंग इन द डिमांड ऑफ कंजप्शन गुड एंड क्रिएट द मेजर प्रॉब्लम इन अ फॉर्म ऑफ वेस्ट गार्बेज एक्यूमुलेशन एंड इट्स डिस्पोजल स्पेशली एट द अर्बन एरिया. तो शहर वाले एरिया में ज्यादा ये मेजर प्रॉब्लम है कि जहाँ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन के साथ में वेस्ट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रिएट होता है. तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, गार्बेज को एक प्रॉपर डिस्पोजल का मेथड यूज करने होंगे. द डिफरेंट मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कॉमनली यूज अराउंड द वर्ल्ड. फर्स्ट वन इज ओपन डंपिंग, यानी खुले में कचरे को कलेक्ट कर लेना, लेकिन इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है. अ कन्वर्सेशन मेथड इन विच सॉलिड वेस्ट डम्प्ड इन सेलेक्टेड एरिया ऑफ द टाउन, इट एक्चुअली कॉजेज पॉल्यूशन. लैंडफिलिंग यानी हमने जमीन को खोद कर उसके अंदर फिल कर दिया, या कोई एरिया जहाँ पर स्लोपी एरिया है और लैंड अनइवन है तो उसको इवनली करने के लिए हमने वहां पर गार्बेज को डिस्पोज कर दिया. वेस्ट आर डम्प इन लो लिविंग एरिया एंड इज कॉम्पैक्ट बाय रोलिंग विद द बुलडोजर, या बुलडोजर की हेल्प से उसमें हम उसे सेट कर देते हैं. नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग, यानी जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उसको कंपोस्ट बिट बनाकर हम उसमें डाल देते हैं, और जो हमें उससे जो खाद या फर्टिलाइजर मिलता है जिससे हम प्लांट्स में यूज कर सकते हैं. ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन अ कंपोस्ट पिट. इट इज देन कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ द सॉइल. आफ्टर अबाउट 3 months the some garbage filled inside the pit change into the organic matter. ओके, इससे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता, इससे हमारा सराउंडिंग क्लीन होता है. Recycling is the simple method. The waste is broken down into the constituent simple material. These material are then used to make new items, and even non-biodegradable waste is also प्लास्टिक, मेटल कैन को हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसे हम वेंडर्स को दे सकते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं. नाउ रीयूज, जो सब्सटेंस को हम फिर से यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, कॉटन के क्लोथ्स वगैरह जिसको हम डस्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, या हम उसके बैग्स बना सकते हैं. तो जो चीजें रीयूज हो सकती है उसे हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए. A very simple conservation technique by using the item again and again. For example, paper can be used for making
envelope, etc. Okay, so इसके साथ ही हमारा chapter 15 finish होता है. I hope you clearly understand this topic very well. Student, I hope you clearly understand this topic very well. And please like my channel and subscribe the subscribe button so आपको इससे related notification available हो सके. And don't worry about notes and question answer. आप वीडियो के एंड में below the link में जाइए, वहां से अपने notes और question answers को download कीजिए. And read this chapter very carefully. This is the very important chapter for your board examination. Thank you and please like my video.